फादर ने बोला कि 5,000 रुपये आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए। क्या बोलना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियल इश्यूज फेस करते हैं और तैयारी में दिक्कत आती है? कि ठीक है, व्हेन आई वेंट टू मुखर्जी नगर आई हैड अ फ्रेंड एंड ही ऑलरेडी टोल्ड मी कि यहाँ पे इतना किराया है और मुखर्जी नगर से थोड़ा सा दूर है, आप यहाँ पे रहोगे तो यू कैन डू इट वेल। खाना खुद से बनाते थे? राइट, इट वाज फाइन। तीनों टाइम या एक टाइम में 3 टाइम का काम? तीनों टाइम नहीं सर, इट वाज मोस्टली 2 times, नॉट 3 times। आई वुड से फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जब भी हो तो we can look at the bigger picture, like 10 years down the line, whether do we want to solve the problem from the root or whether we want to continue it, treating it as an emergency measure and then we want to continue on the same line. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्री को लेके अभी से डरना स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको आप प्री के बारे में? सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहता हूं प्रद्युमन को। प्रद्युमन प्लीज आप यहां पे आइए। प्रद्युमन कॉन्ग्रेचुलेशंस, माइक दे दीजिए प्लीज। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर फॉर कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी। और प्रद्युमन, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बता देना बीच में, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्रीफ में, अगर आप बता सको आपका बैकग्राउंड क्या है और यूपीएससी की जर्नी कैसी रही, मतलब कौन से अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, पास्ट अटेम्प्ट्स में क्या हुआ और क्या स्ट्रगल्स रहे और क्या सबसे बेस्ट एडवाइस आप बच्चों को देना चाहते हो? 2-3 मिनट, 3-4 मिनट आप बोल सकते हो, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे। Right, sir. So I am from Rishikesh. So basically I'm from a middle class. I would say a middle class living in a rural type of background. So I started my UPSC journey after I had some plans to teach students. When I completed my graduation from University of Delhi, I reached my home and I started teaching. So I wanted to go further into that, but COVID-19 struck and suddenly I wanted to do something, not getting bored at my home. So I started studying a little bit of NCRTs, started researching a little bit about UPSC. So I found that, okay, this is something जहाँ मैं थोड़ा अपना ध्यान दे सकता हूँ। 2021 was my first attempt, and when I gave the attempt, it was not to finally get selected because I knew I lacked preparation. It was to decide कि मुझे इस फील्ड में जाना ही है या नहीं जाना है. When I gave that attempt, I finally found that okay, this is something which I can do. So I had that belief coming out of that attempt. Thereafter, in 2022, I gave my second attempt. I cleared the prelims, but unfortunately couldn't go through the mains. And then 2023, it was my third attempt, cleared mains also, but couldn't go through the interview. Till now, it's like one stage at a time. So in 2024, this was my fourth attempt, for which the reserve list is released some days before. And I got selected in the reserve list. So I am very grateful to all people around me, to my parents, to my friends, especially to those who stood by me through these difficult times. So, and 2025 attempt I also have given, and I am awaiting result for the mains for 2025. So this is all about my UPSC journey. As for the hardships, I would like to say that most of the time it was from two things. One, it was that there was no exposure. No one in my whole, I would say, family or extended family knew about how to crack this exam or knew about how to proceed in this exam. So exposure was one thing, and related to it is guidance. Second thing was some financial constraints, since I belong to a rural background, so certainly that was a kind of, I would say, a challenging part that I had to tackle throughout this journey. So these are the two main things. Apart from that, the usual challenges we face as aspirants, I believe most of my batchmates, I would say, they would agree to that we face that on a daily basis. We prepare something, we try to achieve something, and at the end of the day, plans do not go well, or almost we feel like after 6 months or 2 years or even more than that years of preparation, we feel that we lack something. So that is something we all of us have encountered.
So these were the hardships, and sorry sir, I forgot about the last question. ठीक है, शुरू से शुरुआत करते हैं. ठीक है. आप एनडीए में जाना चाहते थे? जी सर. 2017 was the time जब मैंने एनडीए का एग्जाम दिया. Actually I am from Uttarakhand, Rishikesh. तो there is this culture of joining the defense कि ज्वाइन करना है, आर्मी ज्वाइन करनी है या फिर डिफेंस की कोई भी ब्रांच है वो ज्वाइन करनी है. तो I also gave the exam, tried my luck, cleared, but unfortunately couldn't go through the medical. So at that point of time my father said कि ठीक है अब यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करो. Since defense was my motive, so I thought कि ठीक है IPS के लिए try करेंगे. But then I again checked the eligibility criteria because of medical reasons. I thought कि ठीक है, तो I dropped the idea. So after that, this idea came into being after again I would say after my graduation, when I did graduation, and the same things which I said before. आपने पता है कि डिफेंस में जाने का जो क्रेज है ना, मतलब बहुत ज्यादा. मेरा एक दोस्त था, उसका यूं था कि कॉलेज में ना रात को 2 बजे बिल्कुल खड़ा हो गया, मुझे लक्ष्य मूवी देखनी है. मतलब उसका यूं था कि मुझे जाना ही जाना है डिफेंस में किसी भी कीमत पे. उसका फ्लैट फुट था, वो नहीं जा पाया था. तो जब एनडीए में नई सिलेक्शन हुआ, बहुत बुरा लगा होगा, मतलब जिस हिसाब से पैशन होता है. नहीं राइट सर, बहुत बुरा लगा था. और उससे ज़्यादा बुरा ये लगा था कि अब पेरेंट्स को दोबारा से कॉल करके बताना है. व्हेन आई गॉट रिकमेंडेड, आई कॉल्ड एट माई होम एंड सेड कि हाँ पापा हो गया. एंड 3 days after my medical is completed, and I had to call again and I had to tell him कि नहीं अभी नहीं हुआ. तो that was the most difficult part. But after that, things moved on because that also gave me a boost when I got recommended. कि I thought, okay, I have the capability. So that was, I took it in a positive way. So that's how I dealt with it. तो उसके बाद में आपने ग्रेजुएशन किया किरोड़ीलाल कॉलेज से? राइट सर. और उसके बाद आपने +1 और +2 के स्टूडेंट्स को पढ़ाना स्टार्ट किया ग्रेजुएशन के बाद में? राइट सर. क्यों? सर पार्टली बिकॉज इनिशियली जब मैंने शुरू किया तो आई हैड द डिफेंस आइडिया, देन आई हैड टू ड्रॉप इट. तो आई हैड केमिस्ट्री ऑनर्स एज माय कोर्स. वो कोर्स मैंने किया और धीरे आई हैड अ टीचर बाय द नेम SKS सर, वी कॉल्ड हिम, एंड he aroused in me an interest towards teaching because he was such a fabulous teacher कि he had सर की तबीयत खराब थी और दिवाली के 2 दिन बाद की बात थी. सर अपने क्लास में आए और सर ने वो क्लास ली और हमें पता था कि सर की तबीयत खराब है, स्टिल ही गेव हिज फुल. सो टीचिंग का धीरे धीरे वो डेवलप होने लगा. एंड आफ्टर दैट आई वेंट होम. आई थॉट कि ठीक है मैं भी यहाँ पढ़ाऊंगा, and I had to do my best in that. So apart from that, there was also this part ki theek hai, I had to support my family also after my graduation. I did not want to extend this process of relying on family, especially for financial reasons. So these were the 2 major reasons. तो पढ़ाते पढ़ाते एकदम से यूपीएससी का कैसे दिमाग में आया कि यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? सर पढ़ाते पढ़ाते ये हुआ कि कोविड-19 आया एंड आई हैड टू सिट बैक इन माय रूम, सो आई कुडंट टीच एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So out of boredom and lot of my friends, my parents, they said कि ठीक है आप यूपीएससी की क्यों नहीं करते हो. So I started reading NCERTs because I knew one thing about यूपीएससी कि NCERTs करनी होती है. मेरी रिसर्च से मैंने देखा था. So I started NCERT. I thought कि ठीक है मैं साथ में और कुछ अगर नहीं भी कर रहा हूँ तो I should study the NCERT. Wait till this COVID-19 is over, then I will decide कि मुझे किधर जाना है. So after the COVID-19 got over, I gave my first attempt to decide whether I have to go for UPSC, whether I am capable or not. And after that, I went for UPSC. Okay, और आपने तैयारी की थी राजेंद्र नगर में रह के? सर 1 साल मैं मुखर्जी नगर में रहा, उसके बाद मैंने करोल बाग से तैयारी की है. मुखर्जी, आप इंग्लिश मीडियम से थे ना? राइट, इंग्लिश मीडियम. तो मुखर्जी नगर कैसे शिफ्ट हुए? सर मुखर्जी नगर में आई हैड अ फ्रेंड, सो ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज. सो आई कॉन्टेक्टेड हिम एंड ही सेड कि आप यहाँ जाओ, यू कैन स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड इफ यू फाइंड सम फ्रेंड्स देयर इन द करोल बाग रीजन तो आप बाद में शिफ्ट हो जाना. सही है. और एक चीज प्रद्युमन, जो बहुत सारे बच्चे फेस करते हैं तैयारी के दौरान, फाइनेंशियल इश्यूज बहुत फेस करते हैं. आपने भी शायद बताया कि फादर ने बोला कि 5,000 रुपये आपको मिलेंगे तैयारी करने के लिए. तो मतलब क्या बोलना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को जो फाइनेंशियल इश्यूज फेस करते हैं और तैयारी में दिक्कत आती है?
सर एक्चुअली मेरे पापा ने तो ये कहा था कि वट एवर यू वॉन्ट आई विल गिव यू, बट आई फॉर माई सेल्फ आई कुड नॉट टेक दैट मच फ्रॉम होम. तो आई सेड कि ठीक है. व्हेन आई वेंट टू मुखर्जी नगर आई हैड अ फ्रेंड एंड ही ऑलरेडी टोल्ड मी कि यहाँ पे इतना किराया है और मुखर्जी नगर से थोड़ा सा दूर है, आप यहाँ पे रहोगे तो यू कैन डू इट वेल. आई डिड ग्रेजुएशन इन DU एंड ड्यूरिंग दैट टाइम आई न्यू कि ठीक है मैं खाना बना लेता हूँ. सो खाना खुद से बनाते थे? राइट. इट वाज फाइन. तीनों टाइम या एक टाइम में 3 टाइम का काम? तीनों टाइम नहीं सर. इट वाज मोस्टली 2 times, नॉट 3 टाइम. बट मॉर्निंग का नाश्ता तो इट वाज लाइक मोस्टली लिटिल bits and pieces. So बाकी टाइम I did this thing and I would say financial constraints जब भी हो तो we can look at the bigger picture, like 10 years down the line, whether do we want to solve the problem from the root or whether we want to continue it, treating it as an emergency measure and then we want to continue on the same line. So again the bigger picture helped me to move forward. सही है. तो प्रद्युमन, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं प्री को लेके अभी से डरना स्टार्ट हो गए हैं, पीछे भी बैठे हैं, ऑनलाइन बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे उनको आप प्री के बारे में? सर प्री UPSC एग्जाम में पहला पेपर है और इट इज द मोस्ट चैलेंजिंग वन इन द सेंस इट इज मोस्ट अनसर्टेन. You can prepare whole year and on the day when prelims happens, if you lose even 20 to 25 minutes of your 2 hours, then you are going to out of the race. So I think the most important thing is keeping calm on the day when the exam actually happens. क्योंकि क्या होता है कि UPSC prelims का exam we see that there are a lot of questions जो उससे नहीं आ रहे हैं जो हम पढ़ रहे हैं. Nonetheless, we will have to implement whatever we have and we'll have to attempt questions in a way that हमारी accuracy maximize हो पाए और हमारे marks cut off से ऊपर जा पाए. सर एक तो ये है. सेकेंड इज अबाउट द सोर्सेज. कीपिंग द सोर्सेज स्टैटिक एज इट इज कन्वेंशनल विजडम. हर कोई यही कहता है कि यू हैव टू कीप द सोर्सेज स्टैटिक एंड आई ऑल्सो फाउंड इट प्रेटी रिलायबल कि सोर्सेज स्टैटिक रखने से वी कैन रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स, वी कैन रिटेन मोर, वी कैन अप्लाई मोर इन द फाइनल एग्जाम एंड वी कैन गेट द बेटर रिजल्ट्स आउट ऑफ इट. एंड आई वुड से करंट अफेयर्स इन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. हम न्यूज़पेपर एटलीस्ट पढ़ें तो इट वुड बी बेटर बिकॉज न्यूज़पेपर पढ़ने से वी गेट द जिस्ट ऑफ आइडिया और कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में चीज़ें रह जाती हैं और जब हम फाइनल एग्जाम में बैठ के एलिमिनेट कर रहे होते हैं तो वी डोंट नो कि हमारी एक्यूरेसी कैसे 60% 70% हो जाती है. तो वो दैट इज करंट अफेयर्स. आई थिंक वो हेल्पफुल रहेगा. दैट इज ऑल सर फॉर प्रीलिम्स. बढ़िया. ठीक है प्रद्युमन, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस. थैंक यू वेरी मच, आप यहाँ पे आए, जुड़े. Please have a seat. Thank you, sir. Thanks a lot. Thank you.